student of class 12 science. Fine. Now the last topic of this particular chapter is your AC generator. We are going to discuss the AC generator, the rough sketch and the basic idea you are having in class 10 also. Now EI, that EMF, how much is the EMF induced? That is the minus negative of N d phi by dt with the help of Faraday's law of EMI. So we are going to discuss AC generator in this particular video. AC generator or alternator or AC dynamo, a device which converts a mechanical energy into electrical energy. Very, very important device, and it is based on the electromagnetic induction. Very simple. You had already gone through in class 10. Basic idea you got. This is a rough sketch. This is the armature, slip rings, carbon brushes and field magnets, right? So its the principle is electromagnetic induction. Now comes to the construction. What are the components required for this generator? Number one, armature. Armature, this is the armature. The large number of insulated wire wrapped on the soft iron core is the armature. Number two, second is your field magnet, means strong magnet, strong permanent magnet. These are the field magnets. Number three, slip rings. Two slip rings are there, this slip rings, and these slip rings are just one more point. This particular wire, two terminal of the wire, one is connected with the one slip ring and another one is connected with the another slip ring, right? That's important. And number four, carbon brushes or brushes. Here we have taken B1 and B2 are the brushes. Now the point is that how it works, that's important. It's a working. Now it's a working when the armature coil, let's say the ABCD armature coil, rotates in the magnetic field provided by the strong field magnet. It cuts the magnetic field lines. जो magnetic field lines कहाँ से है? ये magnetic field line north to south. The direction of the magnetic field क्या होगा? ये direction of magnetic field क्या होगा? ये this direction of the magnetic field. So it cuts the magnetic field lines. The magnetic flux linked with the coil, changes due to the rotation of the armature. Armature is going to rotate, and hence induced EMF is set up in the coil. The direction of the induced EMF or the current in the coil is determined with the Fleming's right hand rule that you had already gone through in class 10. The current flows out through the brush B1 in one direction is half of the revolution, and through the brush B2 in the next half of the revolution in the reverse direction. So that's why EMF is alternative. Alternative EMF is produced. Now this is a simple model. The armature, north-south direction of the magnetic field, B, and soft iron core over which the coils are wrapped. And here one terminal of it is connected with a slip ring. इस तरह का रिंग होता है more or less, and
two brushes are pressing it like that, दो ब्रश, एक यहाँ एक यहाँ, इससे फिर यहाँ पर लोड लिया जाता है, आउटपुट लिया जाता है, इस तरह का मॉडल रहता है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट ये आर्मेचर ऐसे करके इसको रोटेट कराना, मैकेनिकल एनर्जी रोटेट कराना होता है, इसको ऐसे करके रोटेट कराना है, जिस ऐसे करके रोटेट कराना, बहुत फास्ट रोटेट कराना होता है। अब इसको रोटेट कैसे कराएंगे, या तो हम पानी का एक फ्लो इस पर डालें या वेपर डालें, तो ये अलग अलग तरीका है। तो इसको हमको रोटेट कराना है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पूरा है, और अगर ये रोटेट हो रहा है बहुत फास्ट तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है और करंट इंड्यूस होगा इसमें, इसके कॉइल में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो आएगा, ये कॉइल है, इसका जो कॉइल का हमको मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डेरिवेशन करना होगा, ये पहले समझ लीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन में आएंगे। ये मान लीजिए ये हमको ज़रूरत होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, क्या ज़रूरत होगा, हमको ज़रूरत होगा यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए बी ए कॉस थीटा, ये हम जानते हैं, ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है ये समझाने के लिए ये वाला मॉडल। ए इज द एरिया वेक्टर इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉइल, ये कॉइल का प्लेन के परपेंडिकुलर, दिस इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ये इस तरह से ये जब घूमना शुरू करेगा, रिवॉल्व करना शुरू करेगा ऐसे ऐसे, अगर ये पोजीशन में है तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का सेम डायरेक्शन, अगर ये पोजीशन में आया तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का 90 डिग्री इसमें ये हो रहा है, एंगल हो रहा है। और अगर मान लीजिए ये वाला घूमते घूमते ये अगर ऐसे हो गया तो एंगल कितना हो गया, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 180। तो लाइक दैट यहाँ पर ये एंगल का टर्म जरूरी है, वो समझना जरूरी है कैसे यहाँ पर आएगा। ओके, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यहाँ बहुत यूज़ होगा। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, तो मालूम है, इफ़ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, इस तरह का है। ये क्या था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अगर ये थ्रस्ट, थंब इंडिकेट द थ्रस्ट, this forefinger indicate the direction of the magnetic field, then C central finger indicate the direction of the induced current। इसी हिसाब से यहाँ पर इसका करंट का डायरेक्शन हमको मालूम होगा। अब ये किस तरफ घूम रहा है, अगर ये ऐसे, ये वाला पार्ट अगर ऐसे ऊपर जा रहा है तो थ्रस्ट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन, इस हिसाब से हम लोग जस्ट एनालाइज करोगे तो यू विल गेट इट। ना थियोरेटिकल पार्ट वर्किंग तो क्लियर हो गया। Theory part, this is the diagram of the armature, क्रॉस सेक्शन व्यू, ऊपर वाला व्यू लिए, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, उसका एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, ये मान लेते हैं थीटा एंगल बन रहा है, तो बी का एरिया वेक्टर के टर्म में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। अब हमको तो फैराडेज लॉ का यूज़ करना होगा, तो यहाँ पर एक टर्म आ रहा है थीटा, मान लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए इस डायग्राम में ये आर्मेचर एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से घूम रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होगा, ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी होता है, ये हम जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब यहाँ पर हम लोग मेन मैथमेटिकल कंसेप्ट में आएंगे। हमको निकालना क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। कहाँ से आया ये, फैराडेज लॉ से, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, वहाँ से आया। अब इसी फॉर्मूला में हम पहले फाई का वैल्यू निकालेंगे। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, मान लेते हैं लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है एन, बी डॉट ए
सिंगल का पहले निकाल लेते हैं, बी डॉट ए, एक टर्म का बी डॉट ए, ये क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। थीटा को अभी बोले कि वो ओमेगा टी, तो बी ए कॉस ओमेगा टी लिख देते हैं। ये एक टर्म के लिए हुआ। अगर टोटल हम निकाल रहे हैं, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, तो n नंबर ऑफ टर्न्स है, मान लेते हैं n बी ए कॉस ओमेगा टी, राइट। ये निकल गया, ये जो फाई है उसका वैल्यू इतना आ गया। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो ई आई कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है बाहर कर दे रहे हैं, माइनस एन बी ए कांस्टेंट है, तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस, ये तो था एन बी ए, कॉस का करेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ई आई कितना आया मेरा, प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इतना है। मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 दे दिया, दैट इज ई आई इज इक्वल टू, अब इसको, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको हम लोग ई नॉट पीक वैल्यू से डिनोट कर सकते हैं, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंड्यूस्ड या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इतना। तो ई नॉट का वैल्यू हम लोग क्या दिए यहाँ पर, एन बी ए ओमेगा, राइट। ईएमएफ इंड्यूस का एक्सप्रेशन कितना आया, ई आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, कितना आया था। अगर कोई पूछता है इंस्टेंटेनियस करंट क्या एक्सप्रेशन निकालो, आई इज इक्वल टू ई आई बाई रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल और द सर्किट, तो ये इसका वैल्यू हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। ये क्या चीज़ का वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये 1 था, 2 था, ये 3। अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये जो ईएमएफ आया, ये इसका नेचर कैसा है, अल्टरनेटिव है या नहीं है, उसको जानने के लिए तो हमारा ई आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। एक बात चेक करते हैं हम लोग, फर्स्ट ये ओमेगा टी या थीटा, ओमेगा टी मीन्स क्या होता है, थीटा। अगर ये थीटा 0 डिग्री है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ई आई का 0, साइन 0 0 0 है। नंबर 2, अगर थीटा 90 डिग्री है तो ई आई का वैल्यू कितना आएगा, ई नॉट के बराबर, पीक वैल्यू। क्यों, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, 1, ठीक। नंबर 3, अगर थीटा 180 के बराबर है तो ई आई कितना हो जाएगा, साइन 180 कितना होता है, 0 0 हो गया। फिर अगर थीटा 270 डिग्री होता है तो ई आई कितना होगा, साइन 270 होता है -1, तो माइनस ऑफ ई नॉट इतना। फिर अगर थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री तो
ई आई कितना होगा, साइन 360 0। इस तरह का मेरा आउटपुट निकल रहा है, मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसको अगर हम ग्राफ के रूप में प्लॉट करें, ग्राफ के रूप में, तो देखें कैसा होता है। इसका पीक वैल्यू पहले ये, यहाँ पर हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं अलग अलग एंगल पर। ये एंगल लिए तो पहले 0, फिर ये आया मैक्सिमम पॉजिटिव साइड में, फिर ये 0 आया, फिर ये नेगेटिव साइड में पीक पहुंचा, फिर 0 आया। इस तरह का ये मेरा देखिए यहाँ पर ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल हो गया। यहाँ पर 2 पाई मीन्स 360 डिग्री। यहाँ पर ये इसका पीक वैल्यू आया है, लेकिन माइनस ई नॉट पीक वैल्यू है। यहाँ पर इसका पीक वैल्यू है प्लस ई नॉट। स्मॉल से लिखो या कैपिटल से, एक ही चीज़ है। तो ये पीक वैल्यू ये 360 है। ये कितना है 180। यहाँ पर 270, ये हो गया 90 और ये तो 0। ई आई पहले जब 0 था 0, फिर 90 में पीक वैल्यू पहुंचा प्लस ई नॉट। यहाँ स्मॉल दिए तो स्मॉल ही दे देते हैं। यहाँ पर प्लस ई नॉट, यहाँ भी स्मॉल ई नॉट दिए। तो यहाँ पर ये पीक वैल्यू पहुँचा 180 में, फिर 0 आ गया 270 में माइनस ई नॉट आया, और 360 में फिर 0 हो गया कंप्लीट। ये दैट इज द साइन कर्व। तो दैट्स व्हाई इट इज अल्टरनेटिंग इन नेचर, alternating in nature, right? Whatever the EMF we got in this particular case, that is this type of is in which one armature is there, is known as a single phase alternator. तो क्या बोलते हैं, सिंगल फेज अल्टरनेटर या जनरेटर। अब एक लास्ट पॉइंट इसका, अगर हम लोग एक कॉमर्शियली इसको ऐसे अगर डिज़ाइन किया जाए, ये मान लेते हैं कॉयल हम लोग लिए हैं, ये अभी हम लोग जो यूज़ किए 1 कॉयल सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर रैप किए हुए। अगर हम लोग ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें कि 3 आर्मेचर लिए हैं सॉफ्ट आयरन कोर का के ऊपर रैप किया हुआ है, और तीनों के बीच अगर एंगल 120 ये 120 टोटल 360 इस तरह का, अगर ये पूरा का पूरा चीज़ यही नॉर्थ और साउथ के बीच हम ऐसे रोटेट करें, ऐसे करके, तो क्या होगा, ये 3 फेज जनरेटर बन जाएगा। 3 फेज जनरेटर, लेकिन एंगल 120 हो जाए, दैट विल बी द 3 फेज जनरेटर। और इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो यहाँ पर इस केस में ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इज नोन एज अ 3 फेज जनरेटर और अल्टरनेटर। ओके, इसका यूज़ बहुत सारा है। देयर आर ट्रेमेंडस यूज ऑफ द जनरेटर, हम लोग को मालूम ही है। ओके, थैंक यू।